Good morning, children. Good morning, sir. Very good morning. So today I'm here to start a very beautiful poem. It's a natural form. It's a natural form. First of all, we'll be knowing about the poem. The name of the poem here is On a Killing a Tree. On a kill means जान से मारना. Kill means जान से मारना. On a killing a tree. Here the poet Guy Fertel. He was born on 18 August 1940 and died on 3 November 2023. Before 2 years, he had died in Pune. His poem often talks about the natural things, the destruction of the natural things, right? He was also the part of green movements to protect the natural things, He was born and brought up in Maharashtra, right? Did you understand or not? This poem On a Killing a Tree highlights the natural destruction by human beings. We people, actually, we just carry the axe. Axe, you know? What? Kulhari. Axe means kulhari. And we start cutting down the tree. Trees are also having the feeling just like a human beings. His poems actually highlights that we should not kill the tree, and if you want to kill a tree, then it will take a very long time, because from thousands years ago, the tree spread their roots here and there, right? वह जो पेड़ जो है वो कई सालों से पहले से ही अपने जड़ को, अपने तना को यहाँ वहाँ कुछ जमीन के नीचे उसके जो है जड़ पड़े हुए हैं, और कई दिनों से न्यूट्रिशन जो है सन, एयर और क्या CO2, राइट, वो लेते आ रहे हैं. अगर आपको चाहे आप चाकू से काटो, just take a knife, and if you want to take an axe, the tree will also get hurt, just like human beings. Just as we cut down with a very sharp knife, then what would be your feeling when you cut down your fingers? The bleeding is starting your fingers now. So in the same way, when we start cutting down the tree, then a kind of blood, not a kind of blood in the trees. We cannot see the red blood over there, but a kind of things that can be seen when you cut down the trees. So trees actually are just like our brothers and sisters. They give us ample of oxygen. Did you understand? Okay, I'm going to start the poem. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Can they kill a tree? No, they cannot kill a tree. If you want to kill a tree, then what you have to do? You have to dig out their own roots, right? Suppose if I tell you, better go and cut the trees, then definitely you just carry an axe and you start cutting down the tree, right? पेड़ को तो काट दोगे, लेकिन उसी पेड़ पे एक नया पेड़ भी आ सकता है ना? हो सकता है कि ब्रांचेस को आपने नहीं काटा, हो सकता है उसकी जड़ में एक और पौधा कोई वो जो है वहां से वो जन्म ले लिया. यू अंडरस्टैंड? आ रहा समझ में कि नहीं?
वहां से पौधा जन्म ले लिया, तो आपने तो पेड़ को नहीं काटा ना। एक पेड़ को कितने साल लगते हैं बड़ा होने में। और ये पोम जो है हमें डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी बताती है, पेड़ों की जो लगातार कटाई हो रही है उसके बारे में बताती है। पोएट आखिरकार में इनके जो लिटरल वे में हम जानेंगे और सिंबॉलिक वे में जानेंगे कि आखिरकार में पोएट यहाँ क्यों कह रहे हैं कि ऑन अ किलिंग अ ट्री, जाओ हथियार उठाओ और पेड़ को काट दो। पेड़ को काट दोगे लेकिन पेड़ को जान से मार नहीं दोगे। अब जान से पेड़ को मारना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके जितने भी जड़ें हैं सबसे पहले उसको उखाड़ना पड़ेगा, तब वो पेड़ मरेगा। नहीं तो पेड़, क्योंकि वो कितने समय से वो जो पेड़ है ऑक्सीजन और हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको देते आया है। देते आया कि नहीं देते आया है? और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण साइंस में पढ़े हो कि नहीं? वो अपने खाना को खुद बनाते आया है, वो किसी का नुकसान नहीं किया आज तक। आया समझ में? But can they kill a tree? It is easy to do so. Let's read the poem and find out what the people says on a killing a tree. Yeah, it's not a very difficult task to kill a tree. It will take 1 or 2 hours to kill a tree, right? But on a killing a tree, how the poets highlights about the destruction of the natural things over here, especially trees. If there would be, just imagine, if there would be no any trees in this world, can we survive without trees? Right? If the Christians comes to you, if the questions comes in your mind that who came in this world first? सबसे पहले दुनिया में कौन आया? पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे आए ना, तब वहां पे जीवों की उत्पत्ति हुई, मानवों की उत्पत्ति हुई और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पूरे वर्ल्ड में पैदा हुए। आज जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सबको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप पोएट यहाँ गिव पटेल कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जो मेरी पोम है वो रिलेटेड है ऑन अ किलिंग अ ट्री। हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे पेड़ को जान से मारने के लिए, लेकिन क्या जान से मारने के बाद क्या आप खुश हो पाओगे? कभी कभी आप सोचो कि हम किसी को जान से मार देंगे, किसी को जान से मार दे रहे हैं, तो क्या आप खुश हो जान से मारने में? क्योंकि वो पेड़ कितने लोगों की जानों को बचाया है, कई सालों से ऑक्सीजन देते आया है, कई सालों से फ्रूट्स देते आया है, और हम लोग इस धरती से चले जाएंगे फिर भी वो ऑक्सीजन देता रहेगा, फिर भी वो फल फूल देता रहेगा। हम क्यों मारेंगे पेड़? Did you understand? Now come to the first stanza of this poem. The poet tells here it takes much time to kill a tree. Obviously it takes much time to kill a tree, not a simple jab. J-A-B. The meaning of jabbing, you can say to push at somebody and something. To push at somebody and something means जोर से चुभा देना। जैसे हम कभी क्या होता है, पेड़ को जाते हैं इधर से एक चाकू मारते हैं, उसको चुभता है। जैसे हमें क्या होता है कि कोई हल्का सा अगर कोई पिन से या नुकीले चीजों से अगर हमारे हाथ में वार करता है तो चुभता है कि नहीं? तो पेड़ को भी उसी तरह से चुभता है। पोएट यहाँ कहते हैं नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यू कैनॉट कट द ट्री विद द हेल्प ऑफ द नाइफ, राइट? Slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, observing years of sunlight, air, water, and out of its leprous side, sprouting leaves, right? Consuming means, what is the meaning of the consume? Means it take much time. It take much time. जैसे बहुत समय लगा हो एक पेड़ को मतलब पेड़ को बड़ा होने में,
यहाँ पोएट कंज्यूम का मतलब होता है कि ग्रामेटिकली वे में जाओगे तो कंज्यूम की आई हैव कंज्यूम लॉट ऑफ फूड टुडे, मैं आज बहुत सारा खाना खाया। लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमिंग का मतलब हुआ कि बहुत सालों लगा उसको पेड़ को फैलने में, पेड़ को बड़ा होने में। Did you understand? We'll do it, it has grown slowly. Obviously, the tree, actually, all the trees, they grow slowly and slowly, right? Just like a human beings. Just like, पहले वो क्या बनता है, इतना नन्हा सा पौधा, धीरे धीरे वो इतना बड़ा होता है और धीरे धीरे और बड़ा होते जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग धरती पे पैदा होते हैं एक बच्चा की तरह होते हैं, पेड़ भी एक बच्चा की तरह है ना। पेड़ भी क्या है, एक बच्चा की तरह, उसको पाल पोस के हम बड़ा करते हैं और एक दिन अपनी जो है कुल्हाड़ी या चाकू लेके जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं। एक सोचो कि एक बच्चा इतना बड़ा चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारी बहन हो, इतना बड़ा अगर बच्चा हुई है, चाहे उसको हम कोई चीजों से अगर साफ चीजों से अगर हम उस पर किल करेंगे तो उसको हर्ट होगा कि नहीं। आई नो ट्रीज नेवर टेल्स यू दैट यू कम एंड किल मी, एंड ट्रीज नेवर टेल्स यू एंड ट्रीज नेवर वीप्स। क्या कभी पेड़ को देखे हो कभी रोते हुए? नहीं। लेकिन समय आएगा एक दिन जब सारे पेड़ कट जाएंगे, उस दिन हवा के बिना हम लोग त्राहिमाम हो जाएंगे। आ रहे समझ में? पोएट यहाँ पे कहते हैं कि राइजिंग आउट ऑफ इट्स फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट ऑब्जर्विंग years of sunlight and water and out of the leprous hide means you can say discolored bark। हो सकता है उसकी जो शाखाएं हैं, हो सकता है उसकी जो जड़ें हैं, या उसकी जो ऊपर वाली जो परत होती है जिसको हम खाल कहते हैं, क्या कहते हैं, खाल कहते हैं ना, जैसे पेड़ की जो ऊपर वाली जो अभी स्किन कहते हैं, हो सकता है वो डिस्कलर हो चुका है। लेकिन फिर भी कई जगह है उसकी डालियां, कई जगह उसकी शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ द ट्री और रूट्स ऑफ द ट्री वो फैली हुई हैं और कई सालों से वो यह सनलाइट है ना, हवा पानी लेके वो पेड़ क्या है, अलाइव है। क्या है वो? अलाइव है। स्प्राउटिंग लिप्स, हियर इज द मीनिंग ऑफ स्प्राउटिंग लिप्स मींस होता है द प्रोसेस ऑफ अ न्यू ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ अ न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, द प्रोसेस ऑफ अ न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। यानी अंकुरित पत्तियां कह सकते हो उसको। डिड यू अंडरस्टैंड? इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज हियर इफ यू वांट टू किल अ ट्री it is not a very simple task to kill. You cannot kill a tree by having a knife. You have to carry out a very sharp instrument to kill a tree, right? And before killing a tree, just think that from a very long period of time, the trees actually is generally alive just because of the air, water and sunlight. So before killing a tree, just think that how the trees actually suffered from a very difficult way of life, So did you understand the first stanza? Okay, come to the second stanza. So hack and chop, but this alone on to eat, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. The meaning of heal means you can say to become healthy again. पुनः स्वस्थ होना। पुनः जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम अगर नुकीली चीजों से अगर हम कहीं कट गए तो अगर हम मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन पेड़ को कोई अगर हल्का सा काट दो चाकू से, लेकिन फिर भी देखना उसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी वो क्या करता है, जहां कटा हुआ है वो अपना भाव को फिर से वो घाव को क्या कर देता है, वो भर देता है। लेकिन अपना हम लोग घाव भरने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। कहां जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज हियर, so hack and chop, but this alone won't do it. Obviously, if you want to chop down the tree, you cannot do alone. So some people will also need, some people will also require to chop and cut down the tree, right?
Not so much pain will do it. पेड़ को कोई दर्द नहीं होगा, पेड़ को कोई दर्द नहीं होगा. And from close to the ground will rise curl green twigs. अगर आप पेड़ को काट भी दिए हो तो वहां से देखोगे नन्ही सी पत्तियां भी वहां से दो महीने के बाद, 3 महीने के बाद वहां से भी एक पत्ती जो है, एक ब्रांचेस ऑफ द ट्री वहां से स्टार्टेड ग्रोइंग, वहां से भी एक पत्तियां जो है निकलना स्टार्ट हो जाती. आ रहा है समझ में? मैच्योर बॉक्स मीन्स स्मॉल न्यू ब्रांचेस, यानी लघु शाखाएं कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू form a size. In the second stanza, the poet G. Patel says that if you have finally made a plan to cut down the tree, you won't do it yourself. You will take some people to cut down the tree, right? You will cut down the tree, but after 3 or 4 years, right, you'll see over there our new branches of the tree has once again reborn in the same roots of the from the same roots of the tree, from the same roots of the tree. Did you understand? But when you cut anything, especially हम क्या कहते हैं उसको, जो खाल होता है पेड़ का, छाला, क्या कहते हैं, छाले के छाल, या क्या कहते हैं उसको हम लोग रीजनल लैंग्वेज में, उसको क्या कहते हैं, पेड़ की जो स्किन होती है ना, उसको कट कर देते हैं तो क्या होता है कि उसकी ऊन जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो भर जाती है. लेकिन हमारी जो ऊन अगर कोई काट दिया तो हमारी ऊन भरती नहीं है. हमें वी हैव टू गो टू द डॉक्टर, वी हैव टू गो टू द. डिड यू अंडरस्टैंड? सो डिड यू अंडरस्टैंड द सेकंड स्टैंजा? ओके, नाउ कम टू द stanza number 3. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. Anchoring earth means, say, the roots of the tree that hold it firmly in the ground. The root of the tree that firmly grown in the ground. Grown in the, धरती को सहारा जो उसकी जो रूट देती है. What says here in the third stanza that if you have made a plan to cut down the tree, then first of all what you have to do, you have to pull out their roots from the ground, from the inside the ground, beneath the ground. जितने भी जो है उसकी शाखाएं हैं, अगर आपने प्लान बना चुका है कि पेड़ को काटना सबसे बड़ी बात नहीं है, उसको तो जान से मारना है. उसको क्या करना है? जान से मारना है. तो सबसे पहले पेड़ को जान से मारने के लिए उसकी जितने भी जो जड़ें जो यहां से वहां तक फैली हुई हैं, सबसे पहले उसको क्या करना होगा? उखाड़ना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उखाड़ना पड़ेगा. Out of the anchoring earth it is to be rope tied, to tie something. rope tie means क्या होता है? tie something, जो पूरी तरह से बिल्कुल वो बांधी हुई जो है उसकी शाखाएं नहीं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी के अंदर वो गई हुई है. सबसे पहले आपको उसको वहां से निकालना होगा, तभी पेड़ को आप किल कर पाओगे. अदरवाइज यू नॉट किल अ ट्री. एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है, और एक पेड़ को जीवित रखने के लिए, जीने के लिए बहुत समय लगता है. एंड पुल आउट, स्नैप्ड आउट. पुल आउट, स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट. स्नैप्ड आउट मीन्स क्या होता है? chopped out. Snapped out, pulled out का मतलब होता है to move away from the side. मतलब बाहर से, मतलब अंदर की चीजों को बाहर से खींच के निकाल देना. उनकी जड़ों को पोएट कहते हैं. उसकी अगर पेड़ को मारना है तो उसकी जड़ों को क्या करना है? उसको बाहर से खींच के निकाल दो, क्योंकि कई दिनों से, कई सालों से जो है वहां से न्यूट्रिशन जो है पूरी ब्रांचेस को पहुंचा रही थी. वो पेड़ पहुंचा रहा था, है ना? न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? जड़ों से ना. ओके, so did you understand the third stanza? Now come to the stanza number 4. Or pulled out internally out from the earth cave. Earth cave means to hollow space in the ground. To hollow space in the ground means you will just make a hole in the ground and you have to pull out all the roots of the tree, right? If you want to kill a tree,
and the strength of the tree exposed. Exposed means to protect it from the wind and bad weather. Exposed means to protect it from wind and bad weather. Actually, who really support the tree to grow? First of all, roots. You have already studied in the science. साइंस में पढ़े हो कि नहीं कि पेड़ को खड़ा रहने का सहारा कौन देता है? जैसे मैं अभी खड़ा है पैर के सहारे, उसी प्रकार से रूट भी जो होता है वो सारा जो है वो भार को सहता है और वहां से मिनरल्स और न्यूट्रिशन जो है पेड़ को क्या करता है, वो सारी ब्रांचेस को देता है, रूट देता है। कौन देता है? रूट देता है। तो अब सोचने वाली बात है, पोएट यहाँ कहते हैं कि अगर आप वाकई में आपको मारने की प्लानिंग उसको बना चुके हैं तो सबसे पहले उसकी जड़ों को, जो कई सालों तक जड़ जो है यहाँ वहां तक गए हैं, उसकी जड़ों को खींचना पड़ेगा, तभी ना आप पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर पाओगे। Did you understand? The source wide and wide and the most sensitive hidden for years inside the earth. For years inside the earth, from a very long period of time, the tree is grown up. And first of all, the tree was just like a plant, when he actually becoming elder and elder. Now he became tree. He became a tree. So the roots of the tree, they have spreaded all side of the ground. So first of all, you have already made a plan to kill the tree. Then you have to pull out all the roots beneath the ground. Then only you can kill the tree. And here is the one more meaning: exposed, to protect from wind and bad weather. और कई सालों से पेड़ जो है वहां पे रहते आया है, जीवित रहते आया है। कई सालों से हवा चली उस पे और काफी खराब मौसम आए, फिर भी पेड़ वो नष्ट नहीं हुआ। और तुम जाओ, अगर आपको पेड़ को नष्ट करना है, तुम जाओ और उसको, अगर आपने प्लान बना लिया है तो उसको जाओ और वहां से क्या करो, उसको जड़ को पूरी तरह से, जितने भी जड़ जो है कई सालों से बैड वेदर और एयर में वो अपनी जान को बचा के रखा हुआ था, अपने पूरी तरह से शरीर को बांध के सारी पत्तियों को और ब्रांचेस को मतलब बचाने के लिए वो अपनी जड़ जो है यहाँ से वहां फैला हुआ था, जाओ उसको उखाड़ दो। तभी आप पेड़ को मार सकते हो, तभी आप उसको किल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे पेड़ मरने वाला नहीं है। कई बार देखा गया है बच्चों कि पेड़ वो मर गया, वही पेड़ पे देखना कि दूसरा पेड़ भी वो जीवित हो जाता है कि नहीं? फिर उसको सारी टहनियों को काट दिया जाता है, लेकिन पता चला एक टहनी चुपके से फिर से पैदा हो जाता है। चुपके से क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। फिर मानव आएंगे और उसी डाली को फिर काट देंगे, पता चला फिर 2 साल के बाद फिर से चुपके से फिर एक टहनियां उसमें पैदा हो जाती है। तो पेड़ हमें नुकसान नहीं करते हैं, they give us ample of oxygen, और not only oxygen but also they give us herbs and herbs. वो हमें औषधियों के रूप में मेडिसिन को देते हैं। पहले जमाने में हमारे एंसेस्ट्रल टाइम में, हमारे फोरफादर्स टाइम में, जब कोई मेडिसिन नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, पत्तियों जो क्या होता है, मिंट की पत्तियां होती है। मिंट मीन्स क्या होता है? पुदीने की पत्तियां, और क्या होता है उसका, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी की जो पत्तियां होती है उसको लोग जो है पीते थे और अपने जख्मों में लगाते थे। और कई ऐसे पेड़ के जो उसकी स्किन होते थे उसको क्या करते थे, अपनी पीस के अपनी ऊंड में लगाते थे, है ना। और आज भी बहुत सारी ऐसी भी मेडिसिन बनती है, खासकर मैं होम्योपैथ की बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं वो जड़ी बूटियों से बनती है। जब सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे तो जड़ी बूटियां जो है हाफ सब कहां से लाओगे आप, है ना। पोएट कहते हैं कि जाओ, पोएट यहाँ क्यों कहना चाहते हैं भाई कि जाओ पेड़ एक कुल्हाड़ी लो और जाओ पेड़ को नष्ट करो। वो नहीं चाहते हैं कि पेड़ को काटो जाके। कितना मेहनत लगता है कि पेड़ को
एक ग्रो होने में, एक हमें कितना मेहनत लगा है। एक मैं मां की पेट से पैदा हुआ हूं, मुझे कितना मेहनत लगा है। कोई आएगा मुझे गोली मार के चला जाएगा, वो आएगा मुझे धागर हथियार कर, तो मेरी मां को दुख होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चे को दुख होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार से जब एक पेड़ को आप मारते हो तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा दुख होता है, फीलिंग है उसके अंदर में, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है। लेकिन एक दिन बोलेगा, वो एक दिन बोलेगा। वो पेड़ नहीं बोलेगा, आप लोग बोलोगे, हम लोग बोलेंगे, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेड़ को क्यों नष्ट कर रहा हूं, मैं पेड़ को क्यों मार रहा हूं, मुझे बचा लो। हिंदू धर्म में पीपल और बनियान के पेड़ को लोग सबसे ज्यादा पायस ट्री के रूप में जानते हैं और उसका वर्शिप करते हैं। करते कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गिविंग ट्री है कि नहीं? साइंस में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो उसका नष्ट नहीं कर, हम लोग करते हैं। कई सालों से मैं देखता हूं हमारे गांव में पीपल ट्री है, बरगद का पेड़ है, कई सालों से भी जीवित है। मेरे दादा को मैं पूछा था कि दादाजी मुझे बताइए पेड़ का, अरे बेटा जब से मैं देख रहा हूं पेड़ इसी तरह का है। और वो कहते हैं कि जब मैं थका हारा आता हूं तो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता था। और मेरे दादा भी, मैं कई बार मैं भी जाता था उनके साथ काम करने के लिए, तो मैं भी जाता था पीपल के पेड़ के पास बैठ जाता था। कितना सुकून मिलता था हमें, कितना सुकून मिलता था। वो सुकून अगर सारे पौधों को अब जाओ और नष्ट करो तो वो सुकून एक दिन नहीं मिलेगा। लोगों के पास बैठने के लिए झाड़ियां नहीं होंगे, बैठने के लिए कोई परछाइयां नहीं होंगे पेड़ का। आप भले ऊंचे ऊंचे महल बना लो लेकिन कोई परछाइयां नहीं होगा, हवा नहीं चलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम वाटर बोतल अपने घरों से लाते हैं ना, कि उसी प्रकार से हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हम लोग को जाना पड़ेगा। और वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। इन कोरोना पेंडेमिक देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। हैव यू एवर हर्ड? In corona pandemic, most of the people were suffering from many kinds of diseases, and oxygen was generally required to all of the infected and affected people in corona pandemic. अब उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब बताओ तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा भाई? वो ट्री से ना मिलेगा। तो जब सारे पौधों को नष्ट करोगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? वो जो टैंक में जो ऑक्सीजन टैंक में भर के जाता है वो कहीं ना कहीं वो ट्री से ही वो तैयार होता है ना, तो वो कहां से आएगा मुझे बताओ? चाहे वो अंबानी हो चाहे कोई भी हो, अगर वो ऑक्सीजन नहीं दो किसी को, अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है तो बचेगा कैसे? पोएट यही कहना चाहते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ नंबर 4? नाउ come to the last stanza. Then the matter of scorching and choking in sun and air, pruning and hardening, twisting, withering, and then it is done. Then it is done. The meaning of scorching here, the drying up of the tree after being uprooted. Uprooted का मतलब झुलसने वाला, दम घुटने वाला, झुलसने वाला, दम घुटने वाला। एंड मैं पहले मीनिंग बता लेता हूं। ब्राउनिंग का मतलब मीनिंग होता है टू बिकम ब्राउन इन कलर, मतलब क्या होना? ब्राउन कलर मीन्स क्या होता है? ब्राउन कलर को हिंदी में क्या कहते हैं? भूरा कलर। और एक और मीनिंग है हार्डनिंग। इसका मतलब होता है टू बिकम समथिंग हार्ड, सख्त होना। क्या होना? तो पोएट यहाँ लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, और विदरिंग का एक मीनिंग और है टू ड्राई अप, मुरझाना। क्या होना? लास्ट में ही कहते हैं पोएट, देन द मैटर एंड देन यू फाइनली, जब इतनी डिफिकल्टीज है पेड़ को काटने में और फिर भी आप प्लान बना लिए हो कि नहीं मुझे काटना है, मुझे पेड़ को क्या करना है? किल करना है, मुझे जान से मार देना है। तो लास्ट स्टैंजा में गी पटेल कहते हैं, देखो सुनो क्या कहते हैं, देन द मैटर ऑफ स्कोचिंग एंड चॉकिंग, राइट इन sudden air, first of all you have to pull out all the roots from the ground, pruning, hardening, twisting and withering, and then it is done. और जब आप सख्त हो जाओगे अपने आप में कि नहीं मुझे फाइनल बना लिए हैं कि मुझे इस चीज को कर देना है, इस काम को कर देना है, देन आपका काम हो गया। पेड़ का काम क्या हो गया? तमाम हो गया। पेड़ का काम क्या हो गया? तमाम हो गया।
in sun and air. और जब वहां से रूट भी जब आप निकाल लेते हो पूरी तरह से, उसकी सारी जो है रूट आप निकाल लेते हो अंडर द ग्राउंड, फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड, देन पेड़ जो है आप जीवित नहीं रहेगा। आपने उसको पूरी तरह से जान से मार दिया। आपने क्या कर दिया? उसको जान से मार दिया। My dear student, the poet here, D. Patel, as I have already told you, that he was the part of the green movement to protect the natural things, especially trees and plants. Right? He was the part of this activity. On killing a tree, this poem highlights. He said through this poem that if you want to kill a tree, then you have to take a very sharp knife or a very sharp axe. Right? And if you have already made a plan, whatever it may be, I'll definitely kill a tree. Then first of all, what you have to do, you have to pull out all the roots from the ground that has already been spreaded all over inside the ground. Right? Then only you will be able to kill the tree. So my dear student, one thing I would like to tell you, that you have to not to kill a tree. You have to save the environment. Save the environment. If you save the tree, because trees are just like our brother and sister, just like a family. So it is a custom. We are a Hindu, and it is a custom that we worship, especially the banyan and the people tree. Right? So in the same way, we must try to worship all the trees and think that I know God is nowhere. God is nowhere. And try to think that God is, tree is my God. Tree is my God. And जिस दिन से आप समझ लोगे कि भगवान जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उस दिन से you will stop cutting and stop killing the tree. You can hurt the tree by cutting down, but अगर आपको उसको पूरी तरह से काट के निकाल के फेंक देना है, तो क्या करना? उसकी पूरी जड़ को उखाड़ दोगे, तभी वो मरेगा, अदरवाइज नहीं मरेगा। ठीक उसी प्रकार से घुमन की जो डेथ होती है, आप पेड़ में वार करोगे तो मरेगा नहीं, यहां वार करोगे नहीं मरेगा, हाथ में वार करोगे, हैंड में वार करोगे नहीं मरेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहां पे आपने वार किया, जैसे ही आपने सीने में वार किया, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ों की जो जान होती है, वृक्षों की जो जान टिकी होती है, वो जड़ों में टिकी होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारी जो प्राण टिकी होती है, हमारे ब्रेन में टिकी होती है, हमारी फेफड़े में टिकी होती है। और जिस दिन हम लोग जो है श्वास लेना बंद कर देंगे, जिस दिन एयर एंड वाटर लेना बंद कर देंगे, उस दिन समझ लेंगे कि हम दुनिया को छोड़ के चले गए। इन द सेम वे पेड़ पौधे भी यही करेंगे एक दिन। इसलिए बच्चों, पेड़ को बचाना सीखो। और कोई ऐसा साल नहीं, हर साल बरसात आता है कि नहीं? इसलिए हर साल एक पौधा आप लगाओ, एक नन्हा पौधा को लगाओ। ठीक है? आज से you take an oath from today, you try to plant a tree every year. Every year. That is the end of the class. See you in the next class. Thank you, sir. Okay.